So, brothers and sisters, we are doing today Hebrews chapter 7. आज हम जो है इब्रानियों का 7वां अध्याय का अध्ययन करेंगे. So, so we'll be doing Hebrews chapter 7, 8, and 9, and I'll be doing that. हम जो है इब्रानियों का 7वां, 8वां और 9वां अध्ययन करेंगे और मैं उसका अध्ययन लूंगा. Particularly because I'm quite blessed and excited about these chapters. क्योंकि मैं इस जो अध्याय हैं इनके बारे में मैं बहुत ही उत्तेजित हूं और मैंने बहुत उत्तेजना पाई है. In one sense, quite some years back, I couldn't understand much of these. कुछ साल पहले मुझे जब मैं इन अध्यायों को पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था Or it would not make much of a sense or much of a difference to me. और इन्हें पढ़ने से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. I think it's possible for many of us to feel like that. हम में से कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा. And but when we really understand it, it'll be absolutely wonderful. जब हमें ये समझ में आएगा तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा. You know, even in chapter 5 of Hebrews, it says in verse 10 and 11. और हम इसके बारे में 5वां अध्याय और उसका 10वां और 11 वचन में भी पढ़ सकते हैं. It says, being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek, that is about Jesus, and saying, concerning him we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. यहाँ लिखा है, और परमेश्वर की ओर से मलकी सदेक की रीति पर महायाजक नियुक्त किया गया है. हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो. So in verse 11 it says, concerning this we have much to say, and it is hard to explain. और यहाँ लिखा गया है 11वें वचन में कि हम उसके विषय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं जिसका समझना कठिन है. So that's why the writer wants to explain so many things, but it's not so easy to understand. इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो लेखक है वो बहुत सारी बातों के बारे में कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझना आसान नहीं है. So today I was thinking of verses 1 to 16. Let us see how much we get there. मैं आज 7वां अध्याय का पहले वचन से 16वें वचन तक अध्ययन करना चाहता हूँ. So let us all go slowly and try to understand what it says. हम धीरे इसका अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. So the first verse says, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings, blessed him. यहाँ पहला वचन में कहा है, यही मलकी सदेक जो शालेम का राजा और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था, जब इब्राहिम राजाओं का संहार करके लौट रहा था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. And verse 2 also will read, to whom also Abraham apportioned a 10th part of all the spoils, was first of all by the translation of his name King of Righteousness, and then also King of Salem, which is King of Peace. और दूसरा वचन, इसी को अब्राहम ने अपनी सारी लूट का 10वां अंश भी दिया. वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार पहले तो धार्मिकता का राजा और तब शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा है. Yeah.
So here we see about Melchizedek and Abraham. यह हम देखते हैं मलकी सदेक और इब्राहिम के बारे में लिखा गया है. And about Melchizedek, it is written in first time. It is written in Genesis chapter 14. और हम मलकी सदेक के बारे में जो है उत्पत्ति का 14वां अध्याय में पढ़ सकते हैं. Yeah. So there is a incident which happened, and then Melchizedek went and met Abraham. वहाँ हम देखते हैं कि एक घटना घटी और उसके बाद जो है मलकी सदेक इब्राहिम से मिलने गए. So in this chapter 14, it speaks about 4 kings led by a king called Chedor Laomer. हाँ, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ 4 राजाओं के बारे में कहा गया है, जिसका जो नेता एक राजा था जिनका नाम था व्हाट वाज हिज नेम? Chedor Laomer. चेडोर लाओमर था उनका नाम. And these 4 kings fought against 5 kings. और इन 4 राजाओं ने 5 राजाओं के विरुद्ध लड़ाई की. And out of those 5 kings, there was a king of Sodom also there. और उनमें से जो 5 राजा थे उनमें से एक सोदोम का राजा था. And the Abraham's nephew Lot and family also was staying in Sodom. और जो अब्राहम के जो भाई का जो बेटा था वो भी उधर ही रहता था सोदोम में. So these 4 kings, they defeated the 5 kings, and they took all the goods of Sodom, including Lot and his family. तो हम देखते हैं कि वहाँ जो वो 4 राजा थे उन्होंने जो 5 राजाओं को हराया और जो सोदोम के लोग हैं उन्हें बंदी करके वो लेके गए. And took Lot and family also. और लूत और उनके परिवार को भी उन्होंने बंदी बनाया. So when Abraham heard about this, that his nephew, his relative is captured, then he took his men, around 318 men, and he fought against these 4 kings and defeated them. तो जब अब्राहम ने सुना कि उनके रिश्तेदार को बंदी बनाया गया है तो उन्होंने 318 लोगों को अपने साथ लिया और अब्राहम ने उन राजाओं से लड़ाई की और वो लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल किया. And he rescued Lot and his family and got back all the goods. और उन्होंने लूत और उनके फैमिली और उनके परिवार को वो वापस लेकर आए. उनके सामान जो उन्होंने लूट कर वो ले गए थे वो भी उन्हें वापस मिला. So after finishing that fight and that war, Abraham was met by Melchizedek. जब उस लड़ाई के बाद जब इब्राहिम वापस आ रहे थे तब मलकी सदेक उनसे मिले. We read 17 to 20. Genesis 14, 17 to 20. 17 to 20. जब वह कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है उससे भेंट करने के लिए आया. जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया. Yes, okay. So this is the incident where we see Melchizedek.
तो इस घटना में हम देखते हैं मलकी सदेक के बारे में। Okay, so he came, and at that time he was king of Salem. He was a king, and he was also a priest. So he came with bread and wine and gave to Abraham. तो मलकी सदेक वो शालेम का राजा था और वो एक याजक भी था, परमेश्वर का परमेश्वर का सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। इसीलिए वो दाख मधु और रोटी लेकर अब्राहम को दिया उसने। So the bread was for strength, and the wine was for joy. और जो रोटी था वो उन्हें शक्ति के लिए, और जो दाखरस था वो आनंद के लिए उन्हें दिया गया। And then he blessed. Then what he did was he blessed Abraham and said all these wonderful words. Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High. So he blessed Abraham. तो और उन्होंने जो है मलकी सदेक ने इब्राहिम को आशीष दी, और ये कहते हुए कि सर्वोच्च परमेश्वर का तू दास है, और उस सर्वोच्च परमेश्वर का भी का धन्य दास है तू। So he was a priest, and the priest does a blessing for the person whom he is ministering to. तो जो याजक था उसने इब्राहिम को आशीष दिया। And then Abraham, what he did was he gave a tenth, a tithe of all the things that he got from that war. और फिर इब्राहिम ने अपनी सारी लूट का 10वां अंश मलकी सदेक को दिया। So he gave him the tithe of the best of the things which he got. जो भी सर्वोत्तम लूट में से जो भी उन्हें मिला, उसका 10वां अंश उन्होंने मलकी सदेक को दिया। So this is the story of Melchizedek. तो ये है मलकी सदेक का कहानी। And after this, in Genesis chapter 14, there is no mention about Melchizedek. इसके बाद हम देखते हैं कि मलकी सदेक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, आगे जाकर कुछ नहीं कहा गया है। For 1,000 years there was no mention about him. 1000 वर्षों के लिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। And then suddenly, after 1,000 years, we find David writing a psalm, and it's a psalm, it's a prophecy, and in the spirit he says some things, and Melchizedek word comes out. और हम देखते हैं कि 1000 वर्ष के बाद जो दाऊद राजा है, उन्होंने एक भजन संहिता लिखा जिसमें फिर से उन्होंने मलकी सदेक का नाम लिया। So Psalm 110 we find in verse 4, he says, भजन संहिता 110 का चौथा वचन। Somebody can read it. Psalm 110 verse 4. David is writing a psalm and inspired by the Holy Spirit, and he's saying, "The Lord has sown and will not change his mind. Thou art a priest forever, according to the order of Melchizedek." और यहाँ हम देखते हैं, या कंटिन्यू मधु। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहते हैं, दाऊद कहता है, ये जो वचन उन्होंने भजन संहिता 110 का चौथा वचन में उन्होंने मलकी सदेक के बारे में कहा। So David, under the inspiration of the Holy Spirit, said this, that God is saying that I swear that that about Jesus, that he will be a priest
forever, priest forever, according to the order of Melchizedek. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो दाऊद ने ये लिखा और कहा कि तू हमेशा के लिए मल्कीसदेक के रीति में एक याजक बनेगा. He didn't say that you will be a priest like Melchizedek, but you will be a priest forever like Melchizedek. और उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जो है मल्कीसदेक के समान एक याजक होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तू मल्कीसदेक के समान हमेशा के लिए एक याजक बनेगा. And then again, there is no mention about Melchizedek for many years. और उसके बाद हम देखते हैं कि कई सालों तक मल्कीसदेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया. Another 1,000 years later, और फिर 1000 वर्षों के बाद the writer of Hebrews writes about Melchizedek. जो इब्रानियों का लेखक है, उन्होंने मल्कीसदेक के बारे में लिखा. And he spends one whole chapter writing about Melchizedek. और वो एक पूरा जो अध्याय वो मल्कीसदेक के बारे में उन्होंने लिखा. Genesis has got 3 verses, Psalm has got 1 verse, and now much about Melchizedek is being spoken in Hebrews. और जो उत्पत्ति के पुस्तक में 4 वचन हैं मल्कीसदेक के बारे में, भजन संहिता 110 में 1 वचन है, और अभी जो इब्रानियों का पुस्तक है 1000 वर्षों के बाद बहुत सारा उनके बारे में कहा गया है. So this shows that the word of God is truly inspired by the Holy Spirit, because from year to year, how the Holy Spirit is speaking. तो इसके द्वारा हमें समझ में आता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये जो वचन हैं ये लिखे गए हैं, जो कई सालों के बाद, हजार सालों के बाद भी जिसके बारे में बार-बार कहा गया है. So why the Holy Spirit is writing so much dwelling on Melchizedek? Because it's very important also. और पवित्र आत्मा जो है इस पर, जो मल्कीसदेक है, इस पर क्यों ज्यादा जोर दे रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. So now in verse 3 we read that about Melchizedek. He says that he was without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, and made like the Son of God, he abides a priest perpetually. इब्रानियों 7 का 3रा वचन, इसका न कोई पिता न माता और न कोई वंशावली है, इसके दिनों का न कोई आदि है और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर यह सदा के लिए याजक बना रहता है. Yeah. So this Melchizedek was a very unique person, and a person which who there is no other person like him. जो मल्कीसदेक था वो एक अनोखा व्यक्ति है, क्योंकि उसके समान और कोई नहीं है. In the Bible, the genealogy is written about people. वंशावली लिखी गई है बाइबल में लोगों के बारे में. But this person does not have any genealogy. About his father and mother, nothing is known. About when he was born is not known. About his end also, nothing is known. और हम देखते हैं कि लेकिन कई लोगों का वंशावली लिखा गया है बाइबल में, लेकिन इसका ना कोई माता न पिता और ना कोई वंशावली है, और इनके दिनों का भी कोई आदि और जीवन के अंत के बारे में भी नहीं लिखा गया है. It says he was made like the Son of God, लेकिन and who lives forever. और एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में कही गई है, वो है परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर यह सदा के लिए याजक बना रहता है. When he says Son of God, it is about Jesus before he became a man. और परमेश्वर के पुत्र के बारे में जो कहा गया है वो यीशु मसीह शरीर में आने से पहले उनके बारे में ये कहा गया है. Because when Jesus came as a man,
he had a father and mother, and he had end of days. I mean, physical end of the days. But the Son of God, when he was with the Father, when he created, there is no beginning and there is no ending. He is the Son of God. यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले उनका जो है माता पिता नहीं था और उनकी वंशावली नहीं थी, लेकिन जब वो इस धरती पर आए तब उनका माता और पिता और वंशावली थी, और उनके जीवन का अंत भी हुआ. Huh? Yeah, when he was on earth, but when he was when he was with the Father as a creator, there is no beginning and there is no end. हाँ, और लेकिन जब वो पिता परमेश्वर के साथ जब वो सृष्टिकर्ता के रूप में वो थे, तब उनके दिनों का ना कोई आदि और ना जीवन का अंत था. So how is it so far? Is it too much, or is it okay to go ahead? क्या आप लोगों के लिए ये भारी लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं? Anybody? नहीं ब्रदर, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा लगता. Wonderful, wonderful. Okay, so now Melchizedek was the name Melchizedek means king of righteousness. और मल्कीसदेक नाम का जो अर्थ है वो है धार्मिकता का राजा. And he was the king of Salem. That means he was the king of peace. और वो शालेम का भी राजा था, उसका मतलब है जो शांति का राजा. So he was the king of righteousness and king of peace. वो धार्मिकता का राजा और शांति का राजा है. Okay, and then he was also a priest. और वो एक महायाजक भी था. It is a very unusual thing for a king and a priest. Melchizedek was a king and priest. जो मल्कीसदेक था वो एक राजा था और साथ में वो महायाजक भी था. Very unique person. बहुत ही अनोखा व्यक्ति. Okay, so now it says in verse 4, now observe how great this man is, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the choice spoils. और चौथा वचन, अब ध्यान करो कि यह मनुष्य कैसा महान था जिसे कुलपति इब्राहिम ने अपनी लूट के सर्वोत्तम भाग का 10वां अंश दिया. Now the writer wants to say, or the Holy Spirit wants to say, that this man Melchizedek was a great man. तो जो पवित्र आत्मा जो है लेखक के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत ही अनोखा व्यक्ति है. Now he is writing to the Hebrews, and the Hebrews or the Israelites thought that Abraham was a very great person. जो पत्र इब्रानियों का पत्र लिखा गया है वो इब्रानी या यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था, और यहूदी जो है वो इब्राहिम को अपना कुलपति मानते थे. Okay, and when they thought of their priest, the first priest Aaron, they considered Aaron also as special because God installed Aaron. और हारून जो जिनको मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो महायाजक बनाया गया था उसे भी वो बहुत ही महत्व देते थे. Now verse 5 says that the sons of Levi, they had a commandment to collect a tithe or tenth from the rest of the people, that means their brothers, who were the descendants of Abraham. Verse 5, read it. और 5वां वचन में लिखा है, लेवी की संतानों में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों से अर्थात अपने भाइयों से, यद्यपि वे इब्राहिम के वंशज है, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लिया करें. So all the other 11 brothers, they got property, they got land, but this Levi did not get a property. They were to get the tithes from these 11 brothers. जो याकूब के जो 11 बेटे थे
उन सब गोत्रों को जो है एक जो वारिस बने और उन्हें जमीन मिला, लेकिन लेवी गोत्र को कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन जो 11 भाई हैं उन्हें एक उनके जो उन्हें जो मिलता था उनका 10वां अंश वो लेवी गोत्र को मतलब वो ले सकते थे, उनसे 10वां अंश ले सकते थे, लेवी गोत्र के जो याजक थे। But now in verse 6 it says, the one who there is no genealogy. Genealogy is not traced. Huh? He collected a tenth from Abraham, and also he blessed the one who had promises. Verse 6. और 6वां वचन में कहा है, परंतु इसने जो उनकी वंशावली में से भी न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और उसे आशीष दी, जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी। So Melchizedek received tithes from Abraham, the people who is considered as a very great person, and Melchizedek blessed Abraham. और यहाँ कहा गया है कि मल्कीसदेक को इब्राहिम ने 10वां अंश दिया और मल्कीसदेक ने इब्राहिम जो कुलपति था उसे आशीष दिया। And verse 7 says, without any dispute, the lesser is blessed than the greater. और 7वां वचन, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। So now we can all answer that when somebody is blessing the other, who will be the greater, the one who is blessing or the one who is blessed? जब कोई किसी को आशीष देता है तो आशीष देने वाला बड़ा है कि आशीष मिलने वाला बड़ा है? So what is इस that? प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। What is the answer? इसका उत्तर क्या है? The one who is blessed or the one who is blessing, who is greater? जो आशीर्वाद पाता है या आशीर्वाद देने वाला, कौन बड़ा है? The one who is blessed. Good. Nice to hear your voice. Say that again. What is the answer? The one who is blessing the other. Wonderful. So that is what the Bible says. Okay, in verse 7. Just read verse 7. और 7वें वचन में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। So we see that Melchizedek was proving that Melchizedek was greater than Abraham. तो यहाँ जो है मल्कीसदेक ये सिद्ध करता है कि वो अब्राहम से भी बड़ा है। As great as Abraham is, God also blessed him, but Melchizedek is blessing Abraham. That means Melchizedek is greater than Abraham. और इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञाएं पाई और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लेकिन उनसे भी बढ़कर और अनोखा है मल्कीसदेक जिसने इब्राहिम को आशीष दिया। Why the writer or why the Holy Spirit is trying to say all this? ये सब बातें क्यों जो पवित्र आत्मा लेखक के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं? Is finally to prove something which is very, very important. इससे वो कुछ साबित करना चाहते हैं। And once we know the importance of all what is being spoken in chapter 7, then we receive a blessing and a benefit. और जब हम इस बात और इस महत्व को समझ जाएंगे जिसके बारे में कहा गया है, इसका जो महत्व है इसको हम समझ जाएंगे तो हमें भी इससे आशीष प्राप्त होगा। Otherwise we may feel that, oh, this is just some theory being spoken.
नहीं तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये कुछ ऐसे ही बातें लिखी गई है जो बहुत मायने नहीं रखता है। But the word of God and the truth which the Holy Spirit writes is not just theory. जो सत्य पवित्र आत्मा लिखता है और जो परमेश्वर का वचन है, ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It is very deep and it's got a lot of revelations. ये बहुत ही गहरी है और बहुत प्रकटीकरण देने वाला वचन है। So, so then it says in verse 8, 8 and 9, read 8, 9 and 10. और हम 8वां, 9वां और 10वां वचन पढ़ेंगे। फिर एक दशा में तो नश्वर मनुष्य 10वां अंश पाते हैं, परंतु दूसरे में नहीं पाता। वही पाता है जिसके लिए साक्षी दी जाती है कि वह जीवित है। तो क्या कह सकते हैं कि 10वां अंश लेने वाले लेवी ने भी इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि उस समय वो अपने पिता इब्राहिम की देह में ही था जब मल्कीसदेक ने उससे भेंट की। So, here it is saying that when Abraham gave tithes to Melchizedek, Levi, who was in the body of Abraham, because Abraham's son was Isaac, Isaac's son was Jacob, Jacob's son was one of the sons was Levi. So Levi was in the body of Abraham, and when Abraham gave tithes to Melchizedek, it is that Levi who received tithes was also giving tithes to Melchizedek. तो जो यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जब अब्राहम ने 10वां अंश दिया, जो मल्कीसदेक को 10वां अंश दिया, तब लेवी जो याजक था और जो लोगों से 10वां अंश उन्हें प्राप्त होता था, उन्होंने भी इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि इब्राहिम से ऐसक पैदा हुआ, ऐसक से याकूब पैदा हुआ और याकूब का एक बेटा था, 12 बेटों में से एक लेवी था, जो लेवी गोत्र के लोग जो याजक बनते थे। So now, brothers and sisters, we have made sure that Abraham is, Melchizedek is greater than Abraham. Now, is Melchizedek greater than Levi? और यहाँ ये कहा गया है कि हमने पहले समझ लिया कि जो मल्कीसदेक है वो इब्राहिम से भी बढ़कर है, और यहाँ जो कहा गया है इससे हमें समझ में आता है कि लेवी से भी बढ़कर मल्कीसदेक है। So we see now it is proving that this priesthood of Melchizedek is greater than the priesthood, the Levitical priesthood. तो हम जो इससे हम समझ सकते हैं कि जो लेवी गोत्र के जो याजक थे उनसे भी बढ़कर है मल्कीसदेक का, मल्कीसदेक जो याजक था। So this to prove to the Hebrews and to the Israelites that Levitical priesthood which they considered was given by God, but there is another priesthood coming, the priesthood of Melchizedek, which is greater than that. और इसके द्वारा जो पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है कि मल्कीसदेक की रीति के अनुसार जो याजक आने वाला है, वो जो लेविया जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो शारीरिक व्यवस्था के अनुसार जो याजक बनाए गए थे उनसे भी बढ़कर है। So now in verse 11 it says, now there is a priesthood, Levitical priesthood,
Now, what is the need? Because David said that there will be a priest according to the order of Melchizedek. But what is the need for that? We already have a priesthood. What is the need for another priesthood to come? और 11वें वचन में लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती, क्योंकि इसी आधार पर उस प्रजा को व्यवस्था मिली, तो फिर ऐसे याजक के खड़े होने की क्या आवश्यकता थी, जो मलकीसदेक की रीति के अनुसार तो हो, परंतु हारून की रीति के अनुसार ना कहलाए. So what is the need? He's asking, yeah. तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि इसकी क्या आवश्यकता थी. So because जो when लेवी याजक पद के जो द्वारा अगर सिद्धता प्राप्त होती है, तो फिर मलकीसदेक के अनुसार जो की रीति के अनुसार जो याजक की क्या जरूरत है. So we'll end up right now here and then continue later. तो हम इधर ही ये जो अध्ययन खत्म करेंगे और बाद में इस आगे बढ़ेंगे. So it says here, we are leaving it here where it says that why another priesthood is, because David prophesied that there is another priesthood coming according to the order of Melchizedek. Why another priesthood come and we are already having this? तो हम देखते हैं कि दाऊद ने कहा कि तू मलकीसदेक की रीति के अनुसार युगान युग याजक है. ऐसे एक याजक की क्या जरूरत थी जब लेविया जो गोत्र के याजक जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार वो याजक का काम कर रहे थे, तो मलकीसदेक की रीति के अनुसार जो युगान युग याजक है उसकी क्या आवश्यकता थी. So this is the most important thing, that another priesthood is required, because Aaron was just a type of what is to come. तो जो आने वाला है उसका एक सिर्फ एक सदृश था, वो जो हारून के वंश के जो याजक थे. So here the priests which were there in the Levitical priests, they would not live forever. They would die after that. When they were weak, they would die. जब वो कमजोर हो जाते तो जो हारून के गोत्र के जो याजक थे वो मर जाते थे. But this priest of the Melchizedek is one which will continue forever. लेकिन जो मलकीसदेक के समान है, वो जब ऐसा याजक खड़ा होगा, वो अनंत काल के लिए वह याजक रहेगा. That's why this priesthood is much greater. तो इसीलिए जो ये याजक है, ये याजक जो मलकीसदेक के रीति के अनुसार है, वो जो पहले वाली याजक से बढ़कर है. There are much more. This is just one. This is just one difference, that this priesthood is continuously forever, so it is greater. There are others, many others. तो एक कारण ये है कि वो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार वो एक याजक बना, जो मलकीसदेक की रीति के अनुसार युगान युग याजक है. ये एक कारण है, लेकिन और भी कई कारण हैं. So Aaron brought sacrifices, the animals, and for the forgiveness of sins. Jesus also died for our sins. हारून ने जो पाप की क्षमा के लिए उन्होंने बलि चढ़ाए, जो बैल बकरियों का, और यीशु मसीह ने भी अपने शरीर का बलि दिया हमारे पापों की क्षमा के लिए. So if we know only about the forgiveness of our sins, we have come only up to Aaron, the level of Aaron. तो अगर हम सिर्फ अपनी पाप क्षमा के बारे में जानते हैं, तो हम सिर्फ हारून के याजक होने के बारे में हम समझ सकते हैं.
And that is what many of our Christians, they are very much satisfied with that Aaronic level of their Christianity. जो हारून का जो के आधार पर जो याजक हैं, उससे ही जो ख्रिस्ती जो ऐसा जीवन से संतुष्ट रहते हैं कि उनकी पाप की क्षमा हुई, वो वहीं तक पहुंच पाते हैं. That means the priest on earth, Jesus was sacrificed on earth. But what about Jesus as a high priest in heaven? That is what is left about the priesthood of Melchizedek. जो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने जीवन को बलि के रूप में चढ़ाया, सिर्फ उसी के बारे में हम जानते हैं. और जो आज भी जो हमारे लिए महायाजक बनकर स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसके बारे में हम नहीं जानते. So this is all about knowing Jesus as a high priest now in heaven. और ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के बारे में है, जो हमारे लिए आज जो एक महायाजक बनकर स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं. Is going beyond Aaron to the priesthood of Melchizedek, which Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. Going to that level is the one which is our calling. और हमारी जो बुलाहट है, वो हारून के जो बुलाहट से भी बढ़कर है, क्योंकि ये यीशु मसीह के बारे में है, जो मलकीसदेक की रीति के अनुसार याजक बने. So we will talk about that from verse 12 onwards next time. और हम इसके बारे में 12वें वचन से अगले अध्ययन में हम इस पर अध्ययन करेंगे.